हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन च आप 4 लॉज डिस्कस कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट वॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, देन लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रपोर्शन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन एंड फोर्थ वॉज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। नेक्स्ट फिफ्थ एंड लास्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। So write down the definition. When gases react together or produced in a chemical reaction, they do it in a simple ratio by volume to one another and also to the products provided they are kept at same temperature and pressure. So this is the definition of गे-लुसैक्स law of combining volumes. When gases react together, ਜਦੋਂ दो या दो तो ज़्यादा गैसेस आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ और या प्रोड्यूस्ड इन अ कैमिकल रिएक्शन और किसी कैमिकल रिएक्शन के दौरान बनदियां ने, तो उन्हां दे रिएक्ट करन दा तरीका की है, दे डू इट इन अ सिंपल रेशो। तो उन्हां दी जो रेशो है, किस चीज़ दी रेशो? वॉल्यूम दी। दैट विल बी अ सिंपल होल नंबर रेशो to one another as well as to the products provided they are kept at same temperature and pressure. For example, if H2 and Cl2 combine, then we get hydrochloric acid. If we balance this equation, then it will be H2 plus Cl2 will give us 2HCl. All these are gaseous in nature. So according to this law, these two gases react together to form the product, and the ratio of their volumes will be a simple whole number ratio. Means ਹੁਣ रेशो बाय वॉल्यूम मीन्स वी हैव टू सी द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स का मतलब होंगे बेटा जो इस चीज़ के अगे लिखा जाता है। अगर H2 के अगे कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स इसका की वॉल्यूम है 1। ਇਹਦਾ भी कितना वॉल्यूम हो गया 1, क्योंकि इस दे अगे भी असी कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा होया, बट इस दे अगे की लिखा हुआ है 2। सो the ratio of their volume is 1:1:2, means one volume of hydrogen will combine with one volume of chlorine to give us 2 volume of hydrochloric gas. So this is the law of गे-लुसैक्स law of combining volumes. So with this we have done all the laws of chemical combination. There are 5 laws. Again I will repeat. First is
law of conservation of mass, second law of constant or definite proportion, third law of multiple proportion, fourth was law of reciprocal proportion, and last is Gay-Lussac's law of combining volume. So next, there are two numericals which are important for your exams. First is write down the if 6 point, this is first numerical, if 6.3 gram of sodium bicarbonate are added to 15 gram of acetic acid solution, the residue is found to be 18 gram. What is the mass of carbon dioxide released during this reaction? So this is our numerical problem. 6.3 gram of sodium bicarbonate and are added to 15 gram of acetic acid. Means आप एक chemical reaction करवा रहे हैं जिस विच असी पहला की ऐड किया है 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और उस विच असी ऐड कर रहे हैं 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, जो असी इन्हां दोनों चीज़ों को मिक्स करता तो जो साडा रिजल्ट है उस विच जो वे आ रहा है दैट इज़ 18 ग्राम और नाल एक गैस रिलीज़ हो रही है और वो गैस की है कार्बन डाइऑक्साइड और आपां फाइंड आउट करना है कि उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास की है। सो दिस न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू योर फर्स्ट लॉ दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट NaHCO3 combines with acetic acid। ठीक है, तो अपने कुल की बन रहा है बेटे एक रेजिड्यू और नाल की रिलीज़ हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अपन वेट गिवन है इस चीज़ का कितना है 6.3 और इस चीज़ का कितना है 15 और रेजिड्यू का कितना है 18 एंड वी हैव टू फाइंड this mass of carbon dioxide. So according to the law of conservation of mass, the mass of products is always equal to mass of reactants. So if we plus these two masses, it will be 21.3. It should be equal to 18 plus x. So what will be the value of x? 21.3 minus 18, it will be x or it will be 3.3 gram. So our answer is mass of carbon dioxide released will be 3.3 grams. So this is according to your law of conservation of mass, means mass of products is always equal to mass of reactants. ठीक है, so one more numerical that is related to another law that is known as law of multiple proportion. Third law, when two or more than two elements combine with a fixed weight of third element, they do it in a simple ratio. That was your third law. So statement is carbon and oxygen are known to form two
2 compounds the carbon content in one of these compounds is 42.9% and in other is 27.3%. Show that the data is in the agreement with the law of multiple proportion. So this is your second numerical. सानू की डाटा गिवन है बेटा, कार्बन एंड ऑक्सीजन मिल रहे ने और मिलके दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे ने और अपन नू की गिवन है कि उन्हां दोनों कंपाउंड्स दे विच जो कार्बन दा कंटेंट है एक विच है 42.9% और दूसरे दे विच है 27.3% एंड वी हैव टू प्रूव दैट दिस डाटा इज इन accordance with law of multiple proportion. So we have to show that this data is in the agreement with the law of multiple proportion. So for showing that this law is multiple proportion, we have to fix the weight of one element. ठीक है? So in first compound carbon is equal to 42.9%. So oxygen will be equal to 100 minus 42.9%. That will be equal to it will be equal to 57.1 gram. ठीक है? इन फर्स्ट कंपाउंड कार्बन कितना गिवन है सानू 42.9% दा मतलब टोटल वेट है 100 ग्राम. तो सेकेंड ऑक्सीजन दा वेट कितना आ जाएगा 100 माइनस 42.9, इट विल बी इक्वल टू 57.1. सिमिलरली इन सेकेंड कंपाउंड कार्बन कितना गिवन है 27.3% एंड ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 100 minus 27.3%, or you can say 100 minus 27.3, it will be equal to 72.7 gram. ठीक है, तो असी दोनों कंपाउंड्स दे विच कार्बन और ऑक्सीजन दा मास कैलकुलेट कर लिया. हुण असी इन्हां दोनों कंपाउंड्स दे विच कोई एक एलिमेंट दा मास फिक्स कर दांगे. ठीक है, तो आप किवें लिखांगे इफ द मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1 ग्राम. ठीक है, हम देखो इफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज 57.1, जदों ऑक्सीजन दा मास 57.1 है देन कार्बन दा मास कितना है 42.9. और अगर असी ऑक्सीजन दा मास फिक्स करता 1 ग्राम तो कार्बन का मास कितना आ जाएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, दैट इज इक्वल टू 0.75 ग्राम. आप की कैलकुलेट किया है कि अगर तो ऑक्सीजन 57.1 ग्राम है तो उहदे नाल कार्बन कितना रिएक्ट कर रहा बेटा 42.9. बट अगर असी ऑक्सीजन नो 1 ग्राम ले लिए तो कार्बन कितना रिएक्ट करेगा दैट विल बी इक्वल टू 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, इट विल बी इक्वल टू 0.75. सिमिलरली हुण असी सेकेंड कंपाउंड की गल कर रहे हैं कि इफ मास ऑफ ऑक्सीजन इज सेकेंड टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन कितना बेटा 72.7 ग्राम, देन कार्बन कितना है अपने को 27.3.
सिमिलरली अगर मास ऑफ ऑक्सीजन आप एक फिक्स कर दिए तो कार्बन कितना आ जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाय 22.7 एंड इट विल बी इक्वल टू 0.375 ग्राम। तो हुण देखो असी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन की डेफिनेशन लगा रहे हैं कि दो एलीमेंट्स ने जिहड़े दो अलग अलग तरीक़िਆਂ नाल मिल रहे ने और दो कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है, बट उन्हां दे विचों असी एक एलीमेंट का मास फिक्स करता। किसका मास फिक्स किया है असी? ऑक्सीजन का। और कितना फिक्स किया है? 1 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन दीज रेशोज शुड बी अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो अगर असी इस रेशो नूं कड्ढण दी कोशिश करांगे so ratio will be 0.75 0.375 और अगर तुसी इनू कट करने की कोशिश करोगे it will be 2:1. so it is a simple whole number ratio. so we can say that this data is in accordance with law of multiple proportion. अगर ये ratio डेसिमल्स आ जाती, पॉइंट्स आ जाती, then this data will not be in the accordance with law of multiple proportion. ठीक है, so these are the two numericals that are very important for your exams. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती है बट बेसिक मैथड थोड़ा सेम रहेगा इनू सॉल्व करने लिए। ठीक है, सो इस नाल बेटे अपना लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन का जो टॉपिक है दैट इज़ कंप्लीटेड। और मेरी एक रिक्वेस्ट है बेटा हर एक बच्चे नू प्लीज़ 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 तुसी घबराना नहीं है। ठीक है, एक एक लैक्चर नू एटलीस्ट 2 या 3 बार सुनो। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तुहानू कैमिस्ट्री के रिगार्डिंग दैन यू कैन डिस्कस इट विद मी एनी टाइम। ठीक है, तुसी कभी भी मैनू इस चीज़ बारे अपनी प्रॉब्लम बारे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज़ योर डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हाँ जी बेटा, जो आप लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बीनेशन हुणे डिस्कस किए ने उन्हां दे रिगार्डिंग ही डाल्टन एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने अपनी एटम्स के रिगार्डिंग एक थ्योरी दी है और उस थ्योरी के मेन पॉइंट्स की ने मीनस उस थ्योरी दे विच डाल्टन ने की चीज़ों लैके बेस मान के अपनी थ्योरी फॉरवर्ड की है दैट आर नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ द थ्योरी। postulates of the theory. So we have to write down all the postulates and it is very important. So write down the first postulate of the theory. Matter is made up of extremely small indestructible and invisible particles known as atoms। एक बार तुसी राइट डाउन कर लो फिर आप सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सेकेंड, एटम्स ऑफ same elements are same in their size, shape, mass, etc. Third postulate, atoms of different elements are different in their sizes, shape, mass, etc. Fourth, atom is the
smallest particle which take part in any chemical combination, or you can say any chemical reaction. Fifth postulate, matter or atom, you can say atoms can neither be created nor be destroyed during any chemical combination. Sixth postulates, atoms of different elements combine in a fixed ratio by mass to form a compound. Last postulate is any chemical combination involves separation and rearrangement of atoms. So these are the postulates of Dalton atomic theory. So hun inna nu samjho one by one. First postulate, matter is made up of extremely small, indestructible and invisible. मीनस कोई भी जो मैटर है, आप फर्स्ट लैक्चर दे विच भी बेटा ये चीज़ डिस्कस की सी, दुनिया की कोई भी जो चीज़ है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स तो मिलके बनी हुई है और उन्होंने पार्टिकल्स नूं असीं की कहने आ एटम्स, और वो एटम्स की ने इनडिस्ट्रक्टिबल एंड इनविजिबल, मीनस वो सानू नेकड आई नाल असी अगर अपनी आईज नाल उन्होंने देखने की कोशिश करिए तो सानू वो विजिबल नहीं होंगे। ठीक है, इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब है कि उन्होंने अगे तोड़िया भी नहीं जा सकता। सैकेंड, एटम्स ऑफ सेम एलीमेंट्स, मीनस फॉर एग्जाम्पल असी गल करिए हाइड्रोजन एलीमेंट, तो हाइड्रोजन एलीमेंट के जिन्ने भी एटम्स होंगे उन्होंने सारिया का साइज, शेप और उनका मास है वो सेम होएगा। सिमिलरली अगर असी ऑक्सीजन के एलीमेंट की गल करिए तो उसके भी जो एटम्स ने वो उन्होंने साइज, शेप और मास के विच सेम होंगे। थर्ड, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स फॉर एग्जाम्पल असी एक गल कर रहे हैं हाइड्रोजन की और दूसरी गल कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो डिफरेंट एलीमेंट्स हो गए। तो हाँ जी, थर्ड पोस्टुलेट की है कि डिफरेंट एलीमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल असी 2 एलीमेंट्स ले ले, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हुण अगर असी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की गल करिए तो उन्होंने साइज, उन्होंने शेप और उन्होंने मास की होएगा अलग अलग। फोर्थ, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो कोई भी कैमिकल रिएक्शन होंदी है तो उस विच हिस्सा लैन वाला सब तो छोटा पार्टिकल कौन हुंदा है? एटम। फिफ्थ, एटम नू ना तो बनाया जा सकता है और ना ही तोड़िया जा सकता, और सही वर्ड है ना ही उसका विनाश किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी कैमिकल रिएक्शन। सिक्स्थ, ये आप बहुत बारी कर चुके हैं कि जो 2 डिफरेंट एलीमेंट्स के एटम्स आपस दे विच मिलते हैं बट उन्होंने मिलन की जो रेशियो है दैट शुड बी फिक्स। अगर वो रेशियो फिक्स है तो सानू हरेक बार एक ही तरह का कंपाउंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल असी गल की सी कि अगर असी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दी रेशियो 1:8 फिक्स कर दिए तो साडे कोल हमेशा की बनेगा वाटर। एंड लास्ट, जदों कोई भी कैमिकल रिएक्शन होंदी है
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਐਟਮਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, दूर जाके वो एक नवे तरीके नाल आपस दे विच जुड़ते हैं ताकि सानू की मिल सके प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो दीज आर द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, बट इस थ्योरी दियां कुछ कमियां भी सी जिस कमियां नू फिर अगली थ्योरी दे विच कवर किया गया और नैक्सट थ्योरी इज़ नोन एज मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। बट वो आप नैक्सट लैक्चर दे विच डिस्कस करांगे। कमियां इहदे विच की है, इसकी मेन कमी ये है कि डाल्टन इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि डिफरेंट एलीमेंट्स के जो एटम्स ने उन्हां दा साइज शेप या मास अलग अलग क्यों हुंदा है। ठीक है, फिर वो इस चीज़ को भी नहीं एक्सप्लेन कर रहा कि जो डिफरेंट एलीमेंट्स दे एटम्स ने वो मिलके कंपाउंड किवें बना रहे ने। ठीक है, थर्ड मेन कमी उन्हां दी थ्योरी दी की सी कि एटम्स नू जोड़ के रखन वालियां जिहड़ियां फोर्सिस ने वो किहड़ियां ने। ठीक है, या उन्हां फोर्सिस दी नेचर की है ताकि एक कंपाउंड दे विच एटम्स एक दूसरे नाल जुड़े रह सकन। सो दीज आर द मेन ड्रॉबैक्स और यू कैन से लिमिटेशंस, कमियां सीगियां डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दियां जिन्हां नू नैक्सट थ्योरी दे विच ओवरकम किया गया। और नैक्सट थ्योरी तुहाडी की सी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। फॉर योर एग्जाम्स पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थ्योरी वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थैंक यू बेटा।